Good morning, students. Assalamu alaikum. Hope so that you will find. Students, take out your books of maths. Today I am going to deliver the lecture of class 8th subject maths, and it is our lecture number 2. In today's lecture, we shall solve exercise number 2, question number 6 to 13, and MCQs. In our previous lecture, we have solved our question number 1 to 5 of exercise number 2. First of all, I am going to tell you some review of the previous lecture. In our previous lecture, we have discussed about the irrational numbers and rational numbers. Rational numbers, I have told you that the numbers which can be formed in P by Q form or in quotient form or in fraction form. ऐसे नंबर जिनको हम P by Q फॉर्म में शो कर सकते हैं वो नंबर्स रेशनल नंबर्स कहलाते हैं एंड द नंबर्स which cannot be represent in P by Q form or quotient form or fraction form are called the irrational number. Then I told you about the terminating numbers and non-terminating numbers. I told you that non-terminating number which have infinite number of digits in its decimal part. तो इनके decimal part में infinite number of digits होते हैं. And second one, I told you about the terminating numbers. The numbers which can be formed, which can be represented when in decimal form, there are finite number of digits are called the terminating fractions. Then I told you about the square and square roots. Okay, next now I am going to solve the exercise number 2, question number 6. Question number 6, evaluate, and the first part is 4 whole 1 by 2 by 2 square root plus 12 whole 1 by 4 by 9 square root. I am going to solve the part 2 of question number 6. Question number 6, second part, evaluate. Second part is 3 whole 1 by 5 by 5 square root plus 3 whole 1 by 8 by 8 square root and 4 whole 9 by 10 by 10 whole square root. इवेल्युएट, हमने इसको इवेल्युएट करना है. देखिए यहाँ पर क्या है 3 whole 1 by 5 by 5 square root plus 3 whole 1 by 8 by 8 square root minus 4 whole 9 by 10 by 10 square root. अब इनका पहले हमने क्या करना है, इन स्क्वायर रूट में जो है इनको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे. ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे. देन हम उनका जो इन फ्रैक्शंस को हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे जो हमारे स्क्वायर रूट में है. देन हम उनका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट. ठीक है, हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 3 whole 1 by 5, 3 whole 1 by 5 इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे. ये मिक्स नंबर की फॉर्म में हम कैसे लेके आते हैं कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है देन हम उसमें ये वाला नंबर ऐड कर देते हैं. 5 3s are 15 plus 1 by 5 ये बनेगा. 5 3s are 15 plus 1 कितना बन जाएगा, 16 by 5. मीन के हमने 3 whole 1 by 5 को जब सिंपल फॉर्म में लेके आए, फ्रैक्शन फॉर्म में आए, तो ये क्या हो जाएगा 16 by 5 और डिवाइडेड बाय 5 है. तो क्या डिवाइडेड बाय 5 को हम ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं ना, डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, स्क्वायर रूट प्लस 3 whole 1 by 8, 3 whole 1 by 8, 8 3s are 24, 24 plus 1 कितना हो जाएगा 25 by 8 और ये डिवाइडेड बाय 8 को मैं इस फॉर्म में लिख दूँ, स्क्वायर रूट. देन है 4 whole 9 by 10, 4 whole 9 by 10, 10 को 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, 40 प्लस 9 कितना देगा 49 by 10. तो ये कितना देगा 49 by 10 और इस डिवाइड को मैं कैसे लिख रही हूँ, इस तरह राइट कर सकते हैं. तो जो अगर ये डिवाइड है तो इसको मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में अब मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी. अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1.
अब क्या होगा 16/5, इसको मैं डिवाइड टू मल्टीप्लाई में जब चेंज करूंगी तो क्या होगा, सेकंड फ्रैक्शन था, रेसिप्रोकल मुझे लेना होगा, ठीक है। जब डिवाइड टू मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो सेकंड हमारे पास फ्रैक्शन होती है हम उसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। 5/1 है तो 1/5 बन जाएगी, प्लस 25/8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 माइनस 49/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10। अब क्या होगा, न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। 16 1s are 16/5 5s are 25 प्लस 25 1s are 25 8 8s are 64 49 1s are 49 and 10 10s are 100, ठीक है। अब इनका हम सेपरेटली स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, प्लस 25 स्क्वायर रूट बाय 64 स्क्वायर रूट माइनस 49 स्क्वायर रूट बाय 100 स्क्वायर रूट। 16 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, कल भी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट हमें कैसे लेते हैं कि अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो उनका हम स्क्वायर रूट जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हाउ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 16, तो ये क्या बन जाएगा 16 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ठीक है। ये 4 आ गया। इस तरह हम 25 का स्क्वायर रूट हम कैसे लेंगे, 25 स्क्वायर रूट, ठीक है, इट्स मीन 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कैंसिल और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 5। 4/5 प्लस 25 का स्क्वायर रूट हमें मिल गया तो क्या आया 5। इसी तरीके से हम 64 का लेंगे स्क्वायर रूट इसी मेथड के थ्रू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 माइनस 49 हम लेंगे तो क्या होगा 7 और 100 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 10। 4/5 प्लस 5/8 माइनस 7/10। अब हमारे पास 3 फ्रैक्शन आपके पास आ गई हैं, ठीक है। अब इन फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम अब देखें सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर 8 है, इसका डिनोमिनेटर 10 है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे 5 8 और 10 का। 5 8 और 10 का जो हम एलसीएम लेंगे 2 4s are 8 2 5s are 10 2 2s are 4 2 1s are 2 5 1s are 5, तो एलसीएम कितना रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 2 2s are 4 4 2s are 8 8 5s are कितना आ जाएगा 40। तो इन तीनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 40। जब हम 5 को 40 में डिवाइड करेंगे 40 को 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 8s are 40, उस 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 4s are 32 प्लस 8 5s are 40, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 माइनस 10 4s are 40, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हमारे पास आ जाएगा। अब ये दोनों प्लस की वैल्यूज हैं, ये माइनस की वैल्यू है, हम इन दोनों को प्लस करके इसमें से 28 को माइनस कर देंगे। 32 प्लस 25 कितना हो जाएगा हमारे पास 57, ठीक है। 57 में से हम 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 9 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 4 4 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 29/40 ही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको मैं दोबारा समझा देती हूँ, पहले मिक्स नंबर से हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे इन तीनों वैल्यूज में, और जो ये डिवाइड का है मैंने इसको इस साइन की फॉर्म में लिखा। फिर इन अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो सेकंड वाली जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर इन ऑल द स्क्वायर रूट्स। देन हमने 14 इनका अलग अलग स्क्वायर रूट लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग से स्क्वायर रूट लिया। 16 का स्क्वायर रूट लिया 4, 25 का स्क्वायर रूट लिया तो 5, ठीक है। इसी तरीके से हमने इनके स्क्वायर रूट लिए तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या किया, इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट थे तो हम इनका एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास 40 आ गया और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आई और इनको हम जब इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस से गुजारा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 29/40 जो हमारा आंसर आ गया, ये हमने इवैल्यूएट किया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 9 whole 18/25 and one of them is 3 times the other. Find the number. आपने क्या करना है, वो नंबर फाइंड आउट करना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 9 whole 18/25, ठीक है। और 1, अब हमें वो नंबर्स तो पता ही नहीं है तो खुद से वो हम पहले नंबर एज्यूम करेंगे, देन हम इनको फाइंड आउट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ, सॉल्व करेंगे मैं इसे, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, हमारे पास क्या है 9 होल 18 बाय 25, ठीक है। मैं इसको इन्हें सिंप्लीफाई कर लूंगी, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, मींस कि मैं सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आऊंगी। 215 में 18 में ऐड करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 232 बाय 25, 232 बाय 33 बाय 25, 243, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 243 बाय 25। ये हमारा, हमने मिक्स नंबर से इसके फ्रैक्शन में लिखे हैं। अब हमें नंबर्स नहीं पता, हम वो नंबर खुद से अज्यूम कर लेंगे। लेट वन नंबर इज इक्वल टू x और अदर नंबर उन्होंने बताया है कि द अदर वन ऑफ देम इज थर्ड टाइम द अदर, और अदर नंबर उन्होंने हमें बताया कि थर्ड टाइम अदर नंबर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू क्या आ गया 3x। अब उन्होंने हमें खुद से बता दिया है, इस आपके क्वेश्चन में उन्होंने हमें खुद से बता दिया है कि अगर हम इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, इसके इक्वल आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, बाय गिवन कंडीशन जो हमें बताई है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स x मल्टीप्लाई बाय 3x इज इक्वल टू 243 बाय 25, ये हमारे पास आ गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 243 बाय 25, ठीक है। अब ये 243 बाय 25 हो गया। अब हमने, क्योंकि हमने x निकालना है तो हम x को यहीं पे रखेंगे, x स्क्वायर 3 इस साइड में मल्टीप्लाई होगा और जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो वहां जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। 243 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 3, डिनोमिनेटर के साथ जाके वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब हम इनकी कैंसिलिंग भी हो सकती है, 3 1 are 3, 3 8 are 24, 3 1 are 3, तो x स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 81 बाय 25, x स्क्वायर इज इक्वल टू 81 बाय 25। क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर फिनिश करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x स्क्वायर इज इक्वल टू 81 बाय 25, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x स्क्वायर के रूट से क्या आ जाएगा, कैंसिल, 81 बाय 25, 81 के ऊपर से अलग से हम स्क्वायर रूट लेंगे, 25 के ऊपर से हम अलग से स्क्वायर रूट लेंगे। 81 भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, y 9 9s are 81, ठीक है, और 25 भी हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 5 5s are 25, ठीक है। तो 81 को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, स्क्वायर रूट हम लेंगे इसका 9 स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 9 बाय 25, 25 स्क्वायर रूट इसकी इक्वल होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, उसके रूट कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा आंसर 5, तो 9 बाय 5। इसका मतलब है यहाँ x स्क्वायर उसके रूट x हमारे पास एक नंबर हमारे पास क्या है 9 बाय 5 है, ठीक है, और दूसरा एक नंबर तो हमारे होने क्या है, फाइंड आउट द नंबर्स, तो हमने दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं, x भी और 3x भी हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, एक नंबर तो हमारे पास आ गया है x कितना है 9 बाय 5, तो हम इसको उसी फॉर्म में लेके आ जाते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 5, 5 1s are 5, तो क्या आ जाएगा 5 होल 1 बाय 4, 1 होल 4 बाय 5, 1 होल 4 बाय 5, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 होल 4 बाय 5। ये हमारे पास ये वाला नंबर है 1 नंबर। अदर नंबर हमने निकालना है, ठीक है, अदर नंबर इज इक्वल टू 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 बाय 5, 9 3s are 27, 27 बाय 5, 27 को हम अंदर रखेंगे और 5 में डिवाइड करेंगे, 5 5s are 25, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 होल 2 बाय 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 5 होल 2 बाय 5 हमारे पास आंसर। ये दोनों नंबर हमने फाइंड आउट करने थे जो हमने कर चुके हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर उन्होंने हमें दे दिए, उसको मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में ऐड किया। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो कौन से दो नंबर हैं,
आपने वो बताने हैं वो कौन से दो नंबर हैं जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये वाले फ्रैक्शन आए तो मैंने खुद से अज्यूम कर लिया है दैट फर्स्ट नंबर उन्होंने कहा है, उन्होंने हमें नहीं बताया उसको मैंने एक्सेप्ट, उन्होंने कहा अदर नंबर इज द थर्ड टाइम, ठीक है, द वन ऑफ देम इज 3 टाइम द अदर। दूसरा नंबर क्या है 3 टाइम्स अदर है। फिर उन्होंने हमें खुद कहा है कि दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं इन दोनों नंबर्स का तो हमारे पास ये फ्रैक्शन आ जाती है। तो मैंने बाय गिवन कंडीशन लिखा है x मल्टीप्लाई बाय 3x करेंगे तो 23/25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3x स्क्वायर। अब x स्क्वायर हमने निकाला है 3 यहाँ मल्टीप्लाई करें यहाँ पे डिवाइड 3 और 243 की कैंसिलिंग कर दी, 81/25 स्क्वायर फिनिश करने के लिए हमने ऑन बोथ साइड पे हमने स्क्वायर रूट लिया। जब स्क्वायर रूट लिया तो x की वैल्यू हमारे पास 9/5 आ गई, इसको हमने डिवाइड किया तो 1 होल 4/5। दूसरा नंबर निकालने के लिए हमने x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27/5 आ गया, 27 को हमने 5 में डिवाइड किया तो 5 होल 2/5 हमारे पास जो है वो आंसर आ गया इसका, ठीक है। इसी तरीके से हमारा 8 क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 5 होल 5/64 एंड देयर HCF इज 3 होल 1/5। अब दो पॉजिटिव नंबर, ठीक है, उनका प्रोडक्ट उनको मल्टीप्लाई करके इन्होंने हमें बता दिया है वो कितने हैं 5 होल 5/64 और HCF उन्होंने बता दिया है 3 होल 1/4। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द LCM ऑफ द टू नंबर्स। अब क्या कहा उन्होंने, क्या है कि पहले तो इसका LCM फाइंड आउट करेंगे हम और देन हम उसका क्या फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास पहले हमें LCM ही नहीं पता कि कितना है, पहले हम LCM फाइंड आउट करेंगे देन हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। The product of two numbers उन्होंने हमें खुद से निकाल के दे दिया है। is equal to 5 whole 5/64। इसको भी उसी तरीके से हम फ्रैक्शन फॉर्म में पहले लेके आएंगे, 64 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 320 आ जाएगा, 320 में हम 5 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 325/64। ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ जाएगा। और HCF उन्होंने हमें बता दिया है HCF इज इक्वल टू 3 होल 1/4। तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 प्लस 1 13/4। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है LCM का स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ LCM। अभी हमें LCM ही नहीं पता, LCM हम फाइंड आउट करेंगे देन हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि HCF और LCM के दरमियान एक रिलेशनशिप है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक फॉर्मूला हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। कि दो नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट लें और उन्हीं दो नंबर्स का हम HCF और LCM लें और उनका प्रोडक्ट लें तो वो आपस में दोनों का आंसर क्या आता है इक्वल आता है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के नीचे हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख देंगे विच इज इक्वल टू 325/64 इज इक्वल टू, यहाँ हम LCM यहाँ पर रख लेते हैं, लेट LCM इसको हम रख लेते हैं x है हमारे पास, LCM हमारे पास क्या है x है। HCF हमारे पास कितना है 13/4 और LCM हमारे पास अननोन है दैट इज x, ठीक है। अब यहाँ पर हमने x फाइंड आउट करने हैं, x यहीं पर रहेगा, ठीक है। 13/4 को हम इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे 325/64। जब ये इक्वल के इस साइड पे आएगा तो ये क्या इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, 13/4 है तो ये क्या बन जाएगा 4/13, ये क्या बन जाएगा 4/13। ठीक है 325 ये यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो ये 4/13 बन जाएगा। अब 325 और अब अगर इनकी हम कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल भी हम करेंगे। 325 को जब हम 13 के साथ कैंसिल करेंगे 13 1 13 एंड 13 25 325 हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 1 4, ठीक है, 4 1 4, 4 16 64। तो इसका मतलब है हमारे पास x कितना आ जाएगा 25/16, क्या आ जाएगा हमारे पास x 25/16 हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना था कि LCM लेना था, मींस के लिए हमारे पास क्या आ गया है LCM इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 25/16। अब हमें लेना है स्क्वायर रूट ऑफ LCM,
तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 बाई 16 में लूंगी, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट अलग से और 16 का अलग से, ठीक है। तो ये आंसर क्या रहेगा 5/4। तो अगर हम इसको इसी फॉर्म में लेके आएंगे 5/4, 4 1 जा 4, तो क्या रहेगा 1 होल 1/4 प्लस माइनस में हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। अगर वो हमें पॉजिटिव कहते तो हम प्लस माइनस साथ नहीं लगाए, इसका प्लस ही होता। अगर उन्होंने हमें नहीं बताया कि पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, तो हमें साथ में प्लस भी दिखती है और माइनस भी दिखती है, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स 944 माइनस 5 7 8 7 5 6। तो हमने क्या करना है, इसका सिंपली आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, जो आपको मैंने बताया था डिवीजन मेथड के थ्रू, मैंने आपको बताया था कि डिवीजन मेथड के थ्रू आपने जो है वो कैसे लेना होता है। तो अब हम पिछले जो है वो क्वेश्चंस कर चुके हैं डिवीजन मेथड के थ्रू, तो हमें सिंपली आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 331.24 मीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ रेलिंग रिक्वायर्ड टू फेंस इट, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में एरिया आपको दिया गया है एक स्क्वायर गार्डन का। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि आपके पास एक स्क्वायर गार्डन है, ठीक है, और ये इसका क्या है एरिया। वो एरिया मैंने आपको बता दिया है कितना है 331.24 स्क्वायर मीटर, ये आपको मैंने एरिया बता दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ रेलिंग रिक्वायर्ड टू फेंस इट। तो इसके इर्द गिर्द अब उन्होंने एक रेलिंग लगानी है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द, ठीक है। तो ये बाड़ लगानी है इसके इर्द गिर्द, ये आपने फाइंड आउट करनी है कि ये बाड़ लगाने के लिए उन्हें कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी ये बाड़ लगाने के लिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले हमें स्क्वायर की एक साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी होगी। क्या करनी होगी हमें, ये जो आपके पास स्क्वायर गार्डन है उसकी एक साइड की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी होगी, देन हम उसकी जो है वो लेंथ ऑफ रेलिंग फाइंड आउट करेंगे। तो क्या है, हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन, एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन which is given is equal to 331.24 स्क्वायर मीटर। हमने क्या लेना है, लेंथ ऑफ रेलिंग हमने फाइंड आउट करनी है इसमें, लेकिन पहले हम स्क्वायर की एक साइड की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। लेंथ ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा 331.24, इसका हमें क्या लेना होगा स्क्वायर रूट लेना होगा। क्या लेना होगा हमें स्क्वायर रूट हमें लेना होगा। स्क्वायर रूट हम कैसे लेंगे, बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। बाय डिवीजन मेथड हम कैसे लेंगे 331.24, इसका हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पेयर बनेगा, यहाँ से ये पेयर बनेगा और ये आपके पास 1 सिंगल होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि डिवीजन मेथड से आप स्क्वायर रूट लेने के लिए क्या करना होगा, पहले आपको पेयरिंग करनी होगी। अब 3 कौन सा होता नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 3 आए, तो वो नंबर कोई नहीं है। हम क्या करेंगे 1 1 जार 1 2 2 जार 4 तो बढ़ जाएगा, हम 1 1 जार 1 ले लेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 231 और यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 और 1 2 ऐड, हमारे 1 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब 2 के साथ अगर हम 5 ले लेते हैं, 5 5 जार 25, 125 ये कम है 5, अगर हम 2 के साथ 8 ले लेते हैं 224, तो ये हमारा सुटेबल होगा। 8 यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर मिल गया, तो 224 जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 - 4 करेंगे 7, ठीक है, 0.24 पॉइंट ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब हमने निकालना है 28 और 8 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36, ठीक है। और 36 के साथ हम अगर ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4 6 2 जार 12 3 2 जार 6 प्लस 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 724 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ स्क्वायर जो हमारे पास आ गई है, लेंथ ऑफ स्क्वायर वो कितनी है, लेंथ ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ गई है, स्क्वायर इज इक्वल टू 18.2, ठीक है। मीटर स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा 18.2 मीटर हमारे पास लेंथ आ गई है। अब हमने क्या करनी है, लेंथ ऑफ रेलिंग हमने निकालनी है, लेंथ ऑफ रेलिंग
तो रेलिंग के लिए आपको पता है कि अगर हमने एक साइड की लेंथ निकाली है तो रेलिंग के लिए हमने चारों साइडों पे लगानी है ना रेलिंग। तो हम क्या करेंगे 18.2 मीटर्स को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी लेंथ ऑफ रेलिंग निकल आएगी 18.2 मल्टीप्लाई बाय 4 72.8 मीटर्स हमारी लेंथ ऑफ रेलिंग आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर जो है वो 13, 11, 12 और 13 भी इसी तरीके से हम करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है स्क्वायर हॉल, एरिया ऑफ स्क्वायर हॉल इज 105 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड्स। 1 स्क्वायर 105 बिल्कुल सेम ऐसे ही है। यहाँ हमें एरिया ऑफ लेंथ ऑफ स्क्वायर यहाँ तक हम निकालेंगे, आगे इसके लिए जाने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेम इसी तरीके से ही है। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में भी ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप लोग आपके पास नोट्स भी मौजूद हैं, आपसे उनसे हेल्प लेके जो है वो हम ये क्वेश्चन आपके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15 राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 15 लेंगे, ठीक है, ये सारे आप सॉल्व करने वाले हैं, जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 15 लेंगे तो इसका आंसर आता है 3.8729। ठीक है, एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज इसमें फर्स्ट वाले में क्या है आपके पास कि आप जब स्क्वायर रूट ऑफ 15 लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.8729 और उन्होंने क्या कहा है राउंड ऑफ करना है आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 2 डेसिमल प्लेस आपकी यहाँ तक बनती है 3.8 और 7 से नेक्स्ट वाला डिजिट क्या है, अगर 5 या 5 से बड़ा है तो 7 में 1 ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 है तो वो क्या रहेगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 3.87, ये हमारा बी ऑप्शन होगा करेक्ट। उसके बाद व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 110 राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेस। 110 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10.4880 स्क्वायर रूट ऑफ। सेकंड है स्क्वायर रूट ऑफ अगर आप 110 लेंगे तो आंसर आएगा 10.4880। तो उन्होंने क्या कहा है कि 1 डेसिमल प्लेस तक करें, तो 1 डेसिमल प्लेस, ये वाली 1 डेसिमल प्लेस इससे नेक्स्ट डिजिट आपके पास 8 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 10.5। उसके बाद व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 50 बाय 250 राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। स्क्वायर रूट आपने लेना है 50 बाय 250, तो उसका आंसर आपके पास आता है 0.44721। तो जब उसको आपने 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.45 जो कि आपका ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका एमसीक्यू नंबर 4 है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15.6512 राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 15.6512 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.95615। ठीक है, तो आप उसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा 3.96 2 डेसिमल प्लेस तक। उसके बाद है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.345 राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसका जब आप 0.35 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.59160 आपका आंसर आएगा और इसको आप जब 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो 0.59 आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स हमारी जो है वो आज का जो है वीडियो नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है, इससे एक्सरसाइज और एमसीक्यूज भी हमारे जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। आपका होमवर्क यही है कि आपने जो है वो इसके जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 to 13 और इसके एमसीक्यूज भी आपने प्रिपेयर करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन लेक्चर नहीं ले सके हमारा जो है वो यूट्यूब चैनल गैरिसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो हमारे न्यू लेक्चर्स अपलोड होते जाएंगे साथ साथ आपको वो मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।